हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। 8 जून। यदि हम अर्चा विग्रहों की पूजा को अत्यंत ऐश्वर्य और भव्यता के साथ करें और यदि सभी भक्त सदा आरतियों में भाग लें एवं विग्रहों के समक्ष कीर्तन करें तो भारतीयों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ओर आकर्षित करने का ये सर्वोत्तम मार्ग होगा। गिरिराज को पत्र 8 जून 1972। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। This is a song sung by Bhaktivinoda Thakur as the surrendering process. We have heard so much about surrender. So here are some of the songs how one can make surrender. So Bhaktivinoda Thakur says, the bhuliya tomare samsare asya. My dear Lord, I have come to this material world by forgetting Lord's. And since I have come here, I have suffered so many troubles since a long, long time through different species of life. So therefore, I have come to surrender unto you and submit unto you the story of my sufferings. First thing is that I had to live within the womb of my mother. Janani Jathare Chilam Japan, when I was there, compact, packed up in a airtight bag, hands and legs, I was staying within the womb of my mother. At that time, I had a glimpse of you. After that time, I could not see you. At that time, I could see you, a glimpse. At that time, I thought, Takhono Bhavino Janamo Paya. I thought that this time when I get out of this home, I shall surely engage 10% in the service of the Lord, worshipping the Lord. No more. This repetition of birth and death is so troublesome. Now I shall engage this birth, I shall engage myself simply on devotional service to get out of this Maya. But unfortunately, exactly after my birth, janama hoilo puri maya jale, na hoilo gyana love. As soon as I got out of the womb, immediately Maya, the illusory energy, captured me, and I forgot that I was in such precarious condition, and I was crying and praying to the Lord that this time I shall get out and engage myself in devotional service. But all these senses were lost as soon as I took my bath. Then the next stage is Adavere Chele Hajonero Kole. Then I become a very pet child, and everyone is taking me on the lap, and I thought life is very nice. Everyone loves me. Then I thought this material life is very good. Adarere chele sajanere kole. Hashiya katanu call, because there is no trouble. As soon as I am in little difficulty, everyone comes forward to give me relief. So I thought my life will go on like this. So I simply wasted my time, simply smiling, and that smiling became attractive to my relatives, and they patted me. I thought this is the life. Janaki, Janaka, Janani, Snehita, Bhuliya, Samsara lage. At that time, a great deal of affection of parents, so I thought a material life is very nice. Krome dini dini balako haiya, khelunu balako saho. Then gradually I grew up
and I began to play with my childhood friends, and it was very nice life. And after some days, when I was little intelligent, then I was put into school. So I began to study very seriously. And then after that, বিদ্যার গৌরবে ভ্রমি দেশে দেশে ধন উপার্জন করি. Then being popped up, Bhaktivinoda Thakur was magistrate, so he was transferred from one place to another. He is stating his life that Vidyara Gaurave, because I was little educated, so I was posted and I was earning decently. So I was thinking, it is very nice. Vidyara Gaurave Bhrami Deshe Deshe Dhanu Uparjana Kari Sajana Palana Kari Akmane. And only duty was how to maintain, how to raise family members, how to keep them happy. That became my only aims and object of life. বার্ধক্যে এখন ভবতি বিনোদ. Now Bhaktivinoda Thakur, in his old age, কাঁদিয়া কাতরতি. Now I'm seeing that I'll have to give up all these arrangements. I'll have to go away and take another body. Therefore, I do not know what kind of body I'm going to get. Therefore, I'm crying. I am very much aggrieved. বার্ধক্যে এখন ভকতি বিনোদ কাঁদিয়া কাতরতি. I am very much aggrieved. রাম ভজিয়া তোরে দিন বৃথা গেল এখন আগে. So, without worshipping you, without serving you, I have simply wasted my time in this way. I do not know what to do, therefore I surrender. हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। ये भौतिक सृष्टि को ऐसे बनाया गया है कि इसमें अपने आप सभी लोग चिंतित हैं। ये सिस्टम ही ऐसा है जिसमें हर जगह भौतिक चिंता आपको लोगों में दिखेगी, सभी जीव जंतु में। और ये कोई बनाता नहीं है सिस्टम। जैसे बोलते जंगल में आग लगकर बड़ी भयावह हो जाती है, कभी कभी वो महीनों तक चलती है। जैसे हमने देखा था 2 साल पहले, करीब 2-2.25 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, भयावह। बोलते हैं 5 करोड़ से ज्यादा पशुओं की उसमें मृत्यु हो गई। अब वो किसने लगाया? किसी ने लगाया नहीं होता, वो अपने आप लगता है। स्पेशली जब गर्मी का मौसम आता है और वृक्ष हवा के कारण उनके जो डालियां हिलती हैं उसमें घर्षण होता है, उससे अग्नि उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही ये संसार में, इसीलिए संसार को संसार दावानल कहा गया। ये जंगल की आग जैसा है। हर व्यक्ति आपको चिंतित दिखेगा, छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक सबको ये संसार में चिंता है। भगवान 8वें अध्याय में बताते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार डिजाइन किया गया है क्योंकि यह जेल है। जेल में आपको सुख सुविधा के लिए नहीं भेजा जाता है, वो पिकनिक की जगह नहीं है।
उस सुधार की जगह है। ऐसे ही ये भौतिक संसार हमारे सुधार के लिए बनाया गया है। तो यहां पे दो शब्द आते हैं, कृपण और ब्राह्मण, क्योंकि अर्जुन बोल रहे हैं कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव, ये मेरी कृपणता के कारण। भगवान ने कुछ श्लोक पहले 3 नंबर श्लोक में कहा था शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये तुम्हारा हृदय दुर्बल हो गया है। यहाँ पे वही अर्जुन बोल रहे हैं कि दुर्बलता के कारण, और दुर्बलता क्यों उत्पन्न हुई है? कृपणता से। तो कृपण और ब्राह्मण में क्या फर्क होता है? ब्राह्मण जो होता है वो दूर की दृष्टि रखता है, वो जानता है जीवन क्या है, वह जानता है संसार कैसे चल रहा है, किसने बनाया है, भगवान कौन है, मेरा संबंध भगवान के साथ क्या है। किसी कारणवश, मेरे किसी पाप, किसी अपराध के कारणवश मैं संसार में फंसा हूं, लेकिन निकलने का मार्ग भी है। उस मार्ग की हम चर्चा करेंगे। तो ब्राह्मण को वो पता है, जैसे अगर 10 मंजिला बिल्डिंग है और आप ऊपर 10वें माले पे हैं, तो वहां से आपको दिखता है, काफी सारे रोड्स दिखते हैं, ट्रैफिक दिखता है, तो आप पता लगा सकते हैं कितना जाम है, कहाँ पे कहाँ नहीं है। जैसे जीपीएस होता है, गूगल मैप यूज करते हैं, आपको 100 किलोमीटर जाना है, कौन सा रोड अच्छा है, कहाँ ट्रैफिक कम मिलेगा, सब पता पड़ जाता है, क्योंकि वो ऊपर से देख रहा है, दूरदृष्टि है। लेकिन जो कृपण होता है वो नहीं समझ पाता है, वो सोचता है ये शरीर सब कुछ है, यही जीवन है, बस इसके बाद कुछ नहीं है, इसी में जो सुख दुख भोगना है भोग लो, आगे कुछ नहीं है। उसकी दूरदृष्टि नहीं है। बेसिकली ब्राह्मण विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, और कृपण अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है। न वो भगवान को जानता है, न शास्त्रों को पढ़ता है, न भगवान से अपने कनेक्शन को जानता है, न कैसे पहुंचना है वो जानता है। तो यहाँ पे अर्जुन भी जो है वही दुर्बलता की बात करते हैं, क्योंकि कृपणता के कारण। क्यों? वो सोचते हैं भीष्म मेरे दादा हैं, द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, दुर्योधन मेरा भाई है, ये भाव है। तो ये कृपणता का भाव है, क्योंकि शारीरिक कुछ भी चीज को देखना, शारीरिक संबंध में वो कृपणता है। हाँ, ये मैं हूं, नहीं, ये शरीर मैं नहीं हूं, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो मैं हूं, ये नहीं हूं। अगर कोई कहता है कि मैं शरीर हूं, वो कृपण है, अज्ञानी है। शरीर से संबंध, मेरे माता, मेरे पिता, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा भाई बहन, मेरी डिग्री, मेरा जॉब, मेरा पैसा, मेरा नाम, सब शरीर से जुड़ा हुआ है। जिस दिन शरीर खत्म, सब खत्म, आत्मा निकल जाएगी अपने कर्म अनुसार, जहां जाएगी तो पिछला कुछ नहीं देखे जा रहा है। यह ब्राह्मण जानता है, क्योंकि वह विद्वान है, वो ज्ञानी है, शास्त्र पढ़ के उसने ज्ञान प्राप्त किया है। लेकिन जो कृपण है वो नहीं जानता। इसीलिए कृपण को ब्राह्मण कैसे बनना है, ये हमने जो पहले बात की कि भौतिक संसार में चिंताएं रहती हैं, इससे कैसे मुक्त होना है। तो शास्त्र उसका उपाय देते हैं कि गुरु के पास जाएं। एक कृपण भी ब्राह्मण बन सकता है अगर वह प्रामाणिक गुरु के पास जाए और शरणागत हो। गुरु के पास जाने से क्या होगा? प्रामाणिक गुरु के पास, किसी भी गुरु के पास नहीं। तो ये जिम्मेदारी हमारा है पता लगाना कि क्या होती है क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी प्रामाणिक गुरु की। कौन होता है प्रामाणिक गुरु? तो प्रामाणिक गुरु वह है जो भगवान से प्रारंभ हुई परंपरा में शिक्षा प्राप्त करते हुए आ रहा है। यानी गुरु जो है
उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, ये परंपरा भगवान कृष्ण तक जुड़ी है, तब वो प्रामाणिक माना जाएगा, क्योंकि कृष्ण ओरिजिनल सोर्स है, वहीं से सब कुछ आ रहा है। अगर कहीं और से जुड़ा है गुरु परंपरा, तो ज्ञान कहीं और से आएगा, हो सकता है सही ना हो, चांसेस कम है। तो कृष्ण से जुड़ा होना चाहिए, तो वो होता है प्रामाणिक गुरु। ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाके शरणागत होके इनकी सेवा करके इनसे पूछना चाहिए कि कैसे मैं कृपणता से ब्राह्मणता की ओर बढ़ूं। उससे क्या होगा? उससे संसार में रहते हुए आप देख सकेंगे क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। ये नहीं बोल रहे हैं भगवान अर्जुन को कि ये तुम्हारा परिवार नहीं है, ये परिवार है, ये तुम्हारा ही परिवार है, लेकिन ये सोच लेना कि भीष्म शरीर है, द्रोण शरीर है, ये गलत है। ये उन्होंने शरीर धारण किया है, अभी धर्म तुम्हारा यही है, वो भी आए हैं अपना धर्म का पालन करते हुए युद्ध करने के लिए। तुम्हारा धर्म है कि तुम भी अपना युद्ध करो, और शरीर खत्म तो होगा ही, वो इसी अध्याय में आगे बताएंगे। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पे 5 तर्क देने के बाद अर्जुन परेशान हो गए। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपके पास पूरा ज्ञान है, सारे आइडियाज हैं, और आप अपना पूरा ज्ञान बोल देते हो दूसरों को, लेकिन फिर भी एक सेल्फ डाउट होता है, क्या ये सही है कि जो मैं कर रहा हूं? मैंने कह तो दिया, लेकिन क्या ये सही है? कंफ्यूजन होता है। तो अर्जुन ने 5 पॉइंट रख तो दिए, लेकिन सेल्फ डाउट हो गया, कंफ्यूजन हो रहा है, क्या ये सही है? क्या जो मैं बोल रहा हूं सही है? नहीं, तो अभी भी कंफ्यूज है। तो कंफ्यूजन जो है वो जन्म देती है ज्ञान को, अगर प्रामाणिक गुरु से संबंध हो तो अर्जुन ने क्या किया? हाँ, ये बुद्धिमान अर्जुन है, उसने क्या किया? कृष्ण को, वो जानता है भगवान है कृष्ण, कृष्ण को अपना गुरु बना लिया। शिष्यस्तेहं शाडिमाम प्रपन्नम, कि मैं अब से आपका शिष्य हूं। अभी दोनों कैसे हैं? मित्र हैं। तो मित्र तो है, मित्र रहेंगे, मित्रता तो रहेगी, लेकिन जो अर्जुन है, अब उसने क्या सोचा? मित्रता अपनी जगह है, लेकिन कृष्ण के पास पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि परम भगवान है। तो क्यों न मैं जो कंफ्यूज्ड हूं, इस परिस्थिति में जगत गुरु कृष्ण को समर्पित कर दूं। तो एक मित्र अब एक शिष्य का रोल कर रहा है, और वो चाहता है कि भगवान भी गंभीर बने, गुरु के रोल में आ जाए। ऐसे नहीं कि ये गंभीर हो जाए और भगवान अभी भी मित्र माने न बताएं। तो इसीलिए बोलता है कि निश्चित रूप से आप बताइए मेरे लिए क्या सही है। तो भगवान आगे बताना चालू करेंगे। तो यही बुद्धिमानी हमें भी करनी चाहिए। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि किसी के पास भी हम शरणागत होते हैं, तो वही रिजल्ट मिलता है। कंफ्यूजन से दूर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाएंगे। हरे कृष्ण।